Hello, Assalamu alaikum, students. I'm going to explain you the first order linear degree equation. ठीक है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन. ठीक है, बोथ आर द सेम नेम. फॉर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा ये जो बुक है प्रेफर्ड बुक, एज यू नो दैट द प्रेफर्ड बुक वी आर discussing here is Frank S. Budnick, the writer name, Applied Mathematics for Business and Economics. ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1 इससे बिलोंगिंग है. ठीक है, और जो है लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ना है. ठीक है, सही. तो फर्स्ट ऑफ ऑल today's topic is linear equation, but before this सबसे पहले आप लोगों को मुझे ये बताना है कि व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स में एक ऐसी एक्सप्रेशंस को कहते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेशंस और अलजेब्रिक ऑपरेशंस या अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ मिलके कॉम्बिनेशन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती हैं. ठीक है, एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स. These are called the terms, and they are also termed as the uh, algebraic, not the algebraic equation. ठीक है, these are the combination of the terms. Okay, for example, this is the term 5x, and this is also the term, second term, that is a constant 3. ठीक है, there are the two terms in the algebraic expression. First is 5x and the second is 3. Okay, so listen, this is the coefficient. 5 is the coefficient and x is the variable here. This linear equation is in one variable, that is x, and 5 is the coefficient here. 3 is the constant number, constant term. Okay, there are the two terms in this expression. Now come to uh, the second algebraic expression. Okay, this first expression is the linear equation. Why? Because the variable has the highest power equal to 1, and the second expression has the highest power 2. This is power 2. Okay, power 2 is the second power. Second power means ke the algebraic expression is order 2, degree 2. These two variables are in also in combination, they are in product form, multiply हो रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो इसलिए जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर्स ऐड होके अगेन इस पूरे टर्म की जो पावर बन जाएगी वो 2 बन जाएगी, और इस तरह से आपके पास जो इस टर्म का जो ऑर्डर है वो भी 2 हो जाएगा. और इस तरह से अगर आप देखते हैं तो तमाम टर्म्स में जो हाईएस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है. तो इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है. दिस एक्सप्रेशन हैज़ 4 टर्म्स, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, 5x² is the first term, 2y is the second term, 9xy is the third term, and 4 is the last term, that is the constant. ठीक है, अगर एक ही सिर्फ टर्म को कंसीडर कर लें हम 5x² को, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल. और अगर दो टर्म्स हों एक एक्सप्रेशन के अंदर तो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल. अगर तीन टर्म्स हों तो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल. ठीक है, और अगर तीन से ज़्यादा हुआ तो हम जनरली इसको पॉलिनोमियल कहते हैं. ठीक है, अच्छा, देन एक्सप्रेशंस, जब दो एक्सप्रेशंस मिलती हैं और उसमें इक्वलिटी साइन इन्वॉल्व हो जाती है, देन इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन. एन इक्वेशन स्टेट्स दैट द इक्वलिटी ऑफ टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलकर जो है वो एक इक्वेशन बनती हैं. ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी अगर दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं तो इट विल बिकम एन वन इक्वेशन. ठीक है, algebraic expression may be stated in terms of two or more variable. algebraic expression जो है वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल पर जो है वो मुश्तमिल हो सकते हैं, इंक्लूडेड हो सकते हैं. ओके, first of all, for example, we have an expression 5x plus 7, another expression which is under root 2, that is a constant. Okay, तो the two expression becomes equal. जब ये दोनों expression equal हो गई तो this means कि the whole combination is called the equation. ठीक है, another example is here 52x square minus 9x plus 36. It is an expression of degree 2.
Okay, this expression is equal to the 7m plus 82. This is also a linear expression. Linear expression is there. Okay, so okay, the second one is 52x square minus 9x plus 36 equals to 7m plus 82. In this 52x square minus 9x plus 36 is an expression having the three terms. 52x square minus 9x is the second term and plus 36 is the third term. Another expression 7m plus 82 has the two terms 7m plus 82. ठीक है, ये दो टर्म्स हैं इसके अंदर, ये भी जो है वो एक एक्सप्रेशन है. जब दोनों एक्सप्रेशन मिल जाएंगी तो बिकम एन इक्वेशन. ठीक है, और इस तरह से क्योंकि एक्सप्रेशन हमारे पास सेकंड ऑर्डर की थी तो इसलिए इक्वेशन जो बनेगी वो भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होगी. लीनियर नहीं होगी वो. क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी डिग्री बढ़ गई है, अब 1 से ज़्यादा हो गई है, 1 से 2 हो गई है, तो इस वजह से अब वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी. अब वो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. तो ये जो सेकंड आपके पास गिवन है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन. ठीक है, अब ये क्या है? एक्सप्रेशन वर्सेस जो है वो इक्वेशन. अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, एक्सप्रेशन दोनों में ऊपर नीचे सेम है 4x प्लस 2, बट द डिफरेंस इज ऑफ इक्वलिटी. जब इक्वलिटी आ गया तो दिस बिकम एन इक्वेशन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशन 3x minus 10, 22 minus 5x. 3x minus 10 is an expression, linear expression. 22 minus 5x is also a linear equation. When these two expressions become equal, it become an equation. And this equation is one variable, that is x. The second equation is in three variables r, s and t. Okay, on the left hand side you have the three variables and on the right hand side you have only one constant term. Okay, the third is this is the quadratic equation. In one variable is only one, that is w, but the power of w is increasing here, so it will be the power is 2 here. So this equation is called the quadratic equation. Okay, because the degree of the equation, order of the equation is 2. Next is solution and the roots of the equation. The solution of an equation consists of those numbers which, when substituted for the variable, makes the equation 2. These numbers are called the root of the equation or the root of those values which satisfies the equation. सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन इक्वेशन के वो नंबर्स होते हैं जब हम उसको वेरिएबल की जगह पुट कर दें तो और उसके बाद मज़ीद सॉल्व करें तो वो इक्वेशन 2 हो जाए, यानी कि इक्वेशन की वेरिफिकेशन की जाए. वैल्यू पुट करने के बाद जब उसको वेरीफाई किया जाए तो इक्वेशन जो है वो आपकी 2 हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी. ठीक है, वेरिफिकेशन करते हुए एक मेन रूल मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ पहले भी कि वेरिफिकेशन करते हुए आप कोई भी टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की राइट की तरफ मूव नहीं करते और राइट की तरफ से लेफ़्ट साइड पे मूव नहीं करते, और ऑन द बोथ हैंड साइड जो है वो कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता व्हेन यू वेरीफाइंग अ सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन. ठीक है, जब आप सॉल्यूशन को वेरीफाई कर रहे हों तो कभी भी आपके ऑन द बोथ हैंड साइड सेम ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा. ओके, secondly, you cannot move the terms from the left hand side to the right hand side, okay, and the right hand side to the left hand side. Next is, this is the example 3x minus 10 equal to 22 minus 5x. Okay, we are proving that x equals to 0 is the solution. Okay, when we put x in place of x, when we put x equals to 0, अब x की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं. x की जगह हमने 0 पुट किया, हम लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी. लेफ्ट को अलग सॉल्व किया, राइट को अलग सॉल्व किया हमने. जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 3 जीरोज़ 0 हो गया एंड 5 जीरोज़ 0 हो गया. ओके, 0 माइनस 10 होगा, 22 माइनस 0 22 होगा. माइनस 10 इज नेवर इक्वल टू 22. दिस मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है. दिस मीन्स के 0 इज नॉट द solution of this equation. ठीक है, next is, but when we put x equals to 4, जब हमने 4 पुट किया तो 3 4s are 12 and 5 4s are 20 आ गया. 12 minus 10 2 हो गया, 22 minus 20 equals to 2. 2 equal to 2, this means के left hand side equals to right hand side. हमने कोई भी चीज़ जो है दोनों तरफ सेम ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, लेफ्ट और राइट पे सेम ऑपरेशन अप्लाई नहीं किए. सिंपली वी पुट द वैल्यू, हमने से वैल्यू को पुट किया
उसको मल्टीप्लाई किया, एडिंग सब्सट्रैक्ट किया, और जो फाइनल रिजल्ट आया हमने वो लिख दिया. नथिंग, नो टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मूव टू द राइट हैंड साइड, no term of right hand side move to the left hand side. Okay, in this way we will prove this x equals to 4 is the solution. There are the three types of equation: identity equation, conditional, and false restatement or the contradiction. Identity equations are those equations which are true for all values. चाहे आप उसके अंदर जितनी भी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू उठा के डाल दें, चाहे आप उसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू उठाकर डाल दें, या चाहे आप उसके अंदर ज़ीरो पुट कर दें, वो इक्वेशन हमेशा हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, हर वैल्यू के लिए वेरीफाई करेगी. तो ऐसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, तो आइडेंटिटी इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़. एक एग्जांपल यहाँ पे पुट की हुई है, यहाँ पे डाली हुई है एक एग्जांपल. 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 12x प्लस 24 अपॉन 2. अब x की जगह आप अगर 1 पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास 18 आ जाएगा, और वहाँ अगर आप जो है वो 1 पुट करते हैं तो 12 प्लस 24 36 हो जाएगा, और 36 डिवाइड बाई 2 भी 18 ही आएगा. दिस मीन्स कि 18 इक्वल टू 18. इसी तरह से आप -1 और 0 के लिए भी करके देख सकते हैं, या कोई भी नेगेटिव नंबर को लेकर आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ये आपके पास हमेशा ट्रू ही आएगी. ठीक है, दिस मीन्स के ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं, इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगी. तो दिस मीन्स के इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कंडीशनल इक्वेशन. ओनली लिमिटेड वैल्यूज़ जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे दिया हुआ है एक इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल टू 10. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 को दोनों साइड से माइनस करवा देते हैं, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 5 इसका आंसर आएगा, और 5 प्लस 5 इक्वल ही 10 होगा. यानी कि सिर्फ 5 ही x की जगह पुट किया जाएगा तो ये इक्वेशन ट्रू होगी. अदरवाइज अगर मैं 5x की जगह 0 पुट कर दूं या -5 पुट कर दूं तो ये इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी. सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रही है, और वो है x इक्वल्स टू 5. दिस इज द कंडीशनल इक्वेशन विच इज ओनली ट्रू फॉर द कंडीशन विच इज x इक्वल्स टू 5. फॉल्स स्टेटमेंट और द कॉन्ट्रोडिक्शन. फॉल्स स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो इक्वेशंस होती हैं जो कभी भी किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होती, हमेशा फॉल्स ही रहती हैं. चाहे आप इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू उठा के पुट कर दें, चाहे आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेकर पुट कर दें, या आप 0 पुट करके चेक कर लें, एवरी टाइम इट विल बी रिमेन्स फॉल्स. ठीक है, हमेशा वो जो है वो फॉल्स ही रहेगी. ठीक है, तो इसलिए इसका आपको कभी भी कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी ही नहीं कि जो आप इसके अंदर पुट करें तो वो सेटिस्फाई हो जाए. ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं. यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है इख्तिलाफ आ जाता है. फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब है कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, कभी भी सही साबित ना हो सके, ऐसा स्टेटमेंट है. ठीक है, तो ये उर्दू में भी मैंने आपको इसके मीनिंग्स बता दिए ताकि आपको ये याद रहे कि जो है व्हाट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट और कॉन्ट्रडिक्शन. फॉर एग्जांपल 0 इक्वल टू 2, 0 2 के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, हम उसको ज़बरदस्ती का प्रूफ नहीं कर सकते. तो 0 इक्वल टू 2 जो है वो हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन ही रहेगी. ठीक है, तो ऐसे कोई इक्वेशंस को हम जब सॉल्व करेंगे तो इन हमारे लास्ट स्टेप में ज़रूर कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन आएगी. ठीक है, इसी तरह से आइडेंटिटी की इक्वेशंस को भी हम जब सॉल्व करेंगे तो आखिर में हमारे पास वेरिएबल फिनिश हो जाएगा, और 0 इक्वल टू 0 या 2 इक्वल टू 2 इस तरह की कोई कंडीशन हमारी बन रही होगी. ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की भी 3 ही टाइप्स होती हैं: इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब आएंगे? जब हमारे पास इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशंस होंगी, क्योंकि उसके अंदर हर वैल्यू को जो है वो प्रूफ कर रहा होता है, हर वैल्यू के लिए ट्रू साबित हो रही होती है. तो इस तरह से उस इक्वेशन की बहुत सारी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो इसलिए हम ऐसी इक्वेशंस को हम के सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, कंडीशनल इक्वेशन का किसी किसी खास कंडीशंस पे जो है वो इक्वेशन ट्रू होती है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट विल गिव यू द यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन और फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं हो रहे होते, हमेशा ही फॉल्स रह रहे होते हैं. तो इस वजह से हम ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज द एक्सरसाइज which you have a very much problems in this exercise, so I just try to explain you, so in this way you can resolve some of your problems. Hope so. Okay, this video will help you. Exercise 1.1, x minus 5 equals to 2x minus 8.
Now I'm using the direct method. You can apply the mathematical rule as we have discussed earlier. Okay, so mathematical rule के तहत भी आप ये चीज़ कर सकते हैं. What I have done, मैंने x minus 5 equals to 2x minus 8 I have to remove minus 8 from the right hand side and x from the left hand side. x हमें लेफ्ट साइड से हटाना है और माइनस 8 को राइट हैंड साइड से हटाना है, तो हमने बोथ साइड पे अपोजिट ऑपरेशंस को ऐड करवा दिया, +8 ठीक है, और -x, या आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे +x है तो वो राइट हैंड साइड पे जाके -x हो गया, और यहाँ पे -8 है तो वहाँ जाके +8 हो गया. ओके, सो व्हेन यू सॉल्व इट x equals to 3 आपका रिजल्ट आ रहा है. नाउ यू हैव टू वेरीफाई दिस इक्वेशन के इज दिस अ सॉल्यूशन और नॉट. तो आप x की जगह वहाँ पे 3 पुट कर देंगे. जब आप 3 पुट कर देंगे तो 3 minus 5 जो है वो आपके पास -2 आ जाएगा. एंड देन इन दिस वे 3 आप जो है वो राइट हैंड साइड पे भी पुट करेंगे, तो 2 के साथ जब आप 3 पुट करेंगे 2 3 6, 6 minus 8 2 आएगा. बड़े नंबर्स की साइन हमेशा आती है आपके पास, इसमें 5 और 8 जो है वो बड़े नंबर्स हैं, उनकी नेगेटिव साइन है. सो इस वजह से -2 बोथ हैंड साइड आएगा, और -2 के इक्वल होता है. दिस मीन्स के इट विल बी प्रूव एंड द सॉल्यूशन सेट इज x इक्वल्स टू 3, जो कि हमारी पहले वैल्यू निकली थी. ओके, हमने वो यहाँ पुट कर देनी है. ओके, सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू 3. क्वेश्चन नंबर 5 में we multiply first the numbers outside. आउटसाइड में जो नंबर्स हैं उनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. 2x minus 3, 2 into x minus 3, 2x minus 2 3 is 6, 3x plus 3 4 is 12. Okay, now we are moving 12 from the left right hand side to left, and 3x remains in the place. 2x को हम मूव करवा रहे हैं, 2x को मूव करवाएंगे, तो 2x मूव करवाने के बाद आपके पास 2x जो है वो 3x के साथ आ जाएगा, तो 3x minus 2x हो जाएगा, और -6 -12 हो जाएगा. ठीक है, सो x विल बी इक्वल्स टू -18. -18 को हम पुट करेंगे दोबारा इक्वेशन में वेरिफिकेशन के लिए. देन हम उसको वेरीफाई करेंगे. -18 -3 दोनों के सेम साइन है, तो इस वजह से ये ऐड हो जाएंगे और आपके पास जो है वो साइन -21 आ जाएगा. ओके, इन दिस वे -18 + 4 जो है वो आपके पास -14 आ जाएगा, और जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम -42. -42 दोनों साइड पर आ रहा है, तो दिस मीन्स कि ये वेरिफिकेशन प्रूव्ड हो रही है, वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन. एंड इन दिस वे द सॉल्यूशन सेट विल बी -18. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है. ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है. लोग फ्रैक्शन की वजह से परेशान हो जाते हैं. सिंपली आपने ये करना है कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स में जो भी नंबर हैं उनको आप निकाल के अलग कर लें, उनका आप एलसीएम निकाल लीजिए, और उसके बाद उस एलसीएम को ऑन द बोथ हैंड साइड मल्टीप्लाई करवा दें. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं 6 और 2. 6 और 2 को हमने अलग कर लिया और उसका एलसीएम कैलकुलेट किया. जब हमने एलसीएम कैलकुलेट किया इट विल गिव यू द 6. 2 और 6 का एलसीएम जो है वो आपके पास जो है वो 6 आता है. ठीक है, यू कैन चेक इट वेल. आप इस तरह से ये करके इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो है वो 2 और 6 का एलसीएम जो है वो क्या आता है. ठीक है, 2 और 6 का एलसीएम क्या आता है आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं. ठीक है, 2 and this will give you 6. 2 and 6. 2 and 6 का एलसीएम हम निकाल रहे हैं. ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. ठीक है, then this will give you the LCM. okay, 2 multiply 3 equals to 6. ठीक है, so this will give you the 6 as a LCM. okay, now you multiply this LCM. These are the denominators. okay,
you will check all the denominators in the question. सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स को निकाल के अलग कर लें, उसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम को मल्टीप्लाई करें ऑन द बोथ हैंड साइड, ठीक है। जब आप बोथ हैंड साइड जो है वो एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से कुछ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी कि 6 मल्टीप्लाई एक्स ओवर एक्स 6 मल्टीप्लाई -5 6 मल्टीप्लाई एक्स ओवर 2 6 मल्टीप्लाई 7। व्हेन यू मल्टीप्लाई दो 6 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा, this 6 are cancel out and this 6 is cancelled by this one, 2 3s are 6, ठीक है। So in this way you will get the 3x here, 3x here, okay। In this way you will get 3x here, and this will only 1 is remaining because 6 1s are 6, 1x is x, okay। तो x minus 30 और 3x minus 42 जो है वो आपको मिल जाएगा। In this way now we are moving this x here, इस x को मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ और this 42 will becomes go there and this will give you 3x minus x and 42 here it is minus में है तो वो वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया। 42 minus 30, 42 minus 30 will give you the 12 and 2x equals to 12, x equals to 12 upon 2 equals to 6, okay। Now we are verifying this by putting it into the equation। हम इक्वेशन में दोबारा इस 6 को जो है वो पुट कर देंगे यहाँ x की जगह, ठीक है। यहाँ x की जगह हम पुट कर देंगे 6 को। जब हमने 6 को x की जगह यहाँ पे पुट कर दिया, सॉरी आई जस्ट समथिंग देयर इज रॉन्ग देयर, ये आप 6 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस 6 को आप हटा लीजिएगा, ये 6 यहाँ नहीं आएगा, हमें इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो ये दिस इज नॉट द इक्वेशन, दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, सो वी विल नॉट यूज दिस वन, we will use this only the equation which is given in the question, ठीक है। 6 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 6 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये 6 इस 6 से कैंसल आउट हो गया and what will remains 2 3s are 6, 2 3s are 6, तो 3 minus 7 जो है वो आपके पास -4 आ जाएगा, ठीक है। और 1 minus 5 जो है वो 1 minus 5 आपके पास -4 आ जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -4 इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू -4 हो जाएगा एंड दिस मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड द सॉल्यूशन सेट इज 6। क्लियर? होपफुली कि मेरी आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स रहा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17, b/2 - 3 equals to 5 plus b/2। Similarly we have done as in the previous question, we will take the LCM. There are the two denominators here, one is here on the left hand side and one is here on the right hand side, both are the 2, दोनों जो हैं वो आपके पास क्या हैं, 2 ही हैं, ठीक है। ये भी 2 है, ये भी 2 है। So what you will do, you will simply take the LCM, 2 1s are 2, 2 1s are 2 and the LCM will be 2, ठीक है। LCM आपके पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि सिर्फ हम ये वाली साइड को देखते हैं जो यहाँ लिखे हुए होते हैं नंबर, ओके। सो LCM will be 2, LCM आपके पास 2 आ गया। नाउ यू मल्टीप्लाई 2 ऑन द बोथ हैंड साइड, 2 को हमने बोथ हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हमने 2 को बोथ हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, 1 रह गया, ओके। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 1 रह गया, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाई v, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 5s are 10, 1 मल्टीप्लाई v। अब ये जो v है ये प्लस v, ये वहाँ जाके माइनस हो रहा है, ओके, एंड दिस -6 विल बिकम +6 ऑन दिस साइड, ठीक है। यहाँ आके ये +6 हो रहा है। सो यू विल गेट v minus v 0v and equals to 16, 0 is not equals to 16, 0 जो है वो 16 के इक्वल नहीं होता। दिस मीन्स के ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, इख्तिलाफ आ रहा है, ठीक है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सही है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ये, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इख्तिलाफ है। सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। होपफुली यू विल क्लियर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. ठीक है, you have many problems in 22 because infinitely many solutions. So now we are multiplying 2 inside here. 2y, 2 multiply y, 2y, 2 multiply 1, 2, 3 multiply y, minus 3 multiply plus y, minus plus minus, minus 3y, minus minus plus, minus minus plus. Okay, minus minus plus, you can use this rule. सेम साइन जब मल्टीप्लाई हो, व्हेन यू गेट सेम साइन मल्टीप्लाइड हो, तो आपके पास प्लस ही आता है. ओके, व्हेन द अपोजिट साइंस मल्टीप्लाई यू विल गेट नेगेटिव साइन, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव you will get negative, negative multiply negative will you get positive. Okay, so here minus multiplied by minus 1, minus 3 multiplied by minus 1 will give you plus 3, will give you plus 3. Okay, so now what I am doing in the next step, I am moving the constant terms from left hand side to the right hand side. Okay, I am moving the constant term to the right hand side and the variable term, that is minus y, on the left hand side. Okay, when I move minus y on both this side, this will become plus y, this will become plus y. 2y plus y equals to 3y, 3 minus 3 0y, 5 minus 2 3, 3 minus 3 0, 0 equals to 0. This means it is an identity. The variable is vanish in both cases. आपके पास आइडेंटिटी हो, कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशन हो, तो भी वेरिएबल रिमूव हो जाएगा, और अगर आपके पास आइडेंटिटी है तो भी वेरिएबल रिमूव हो जाएगा. कॉन्ट्राडिक्शन में आपके पास इस तरह की, कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्स स्टेटमेंट में आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ रही होगी आखिरी स्टेप में, और आइडेंटिटी में आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ रही होगी कि 0 इक्वल्स टू 0 हो या 2 इक्वल टू 2 हो जाए. ठीक है, तो इन दिस वे अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो दिस विल गिव यू द इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, अगर 0 इक्वल्स टू 0 आ जाए, या 2 इक्वल टू 2 आ जाए, या 4 इक्वल टू 4 आ जाए, या -2 इक्वल टू -2 आ जाए, इस तरह की कोई कंडीशन आपके आखिरी स्टेप में बनती है, तो दिस मीन्स के इट विल बी द इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, बट अब अगर आपके पास कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है, फॉल्स स्टेटमेंट आता है, जैसे कि 2 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकता, तो इन दिस वे दिस मीन्स कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम लास्ट में नो सॉल्यूशन लिख देते हैं. ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों पॉइंट्स. ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज नेक्स्ट इज 20. ओके, 20 इज ऑल्सो हेयर. 20 में देखें आपके पास क्या किया हुआ है कि आपके पास दोनों तरफ जो है वो 2, एक तरफ 2 है और एक तरफ 4 है. जब आप 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, व्हाट यू विल गेट, 2 एंड 4 का आप जब एलसीएम निकालेंगे, देन यू विल गेट व्हाट, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 1 नीचे वैसे ही आ गया. ठीक है, 2 2 जा 4, देन एलसीएम इज दिस साइड. ओके, LCM is this side. This means कि 2 multiply 2 equal to 4. ठीक है, तो ये 4 आ गया आपके पास. 4 LCM जो है वो आपने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया. जब आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो गया, 4 1 जा 4 और 4 4 जा कैंसिल हो गया. ठीक है, सो ये 2 रह गया, 2 मल्टीप्लाई टी 2t हो जाएगा, -2 3 जा 6, 4 मल्टीप्लाई 1 4 4 3 जा 1 मल्टीप्लाई 4, 4 माइनस टी वैसे ही रह जाएगा क्योंकि बाहर वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो गई हैं, ओनली 1 रिमेन्स. ठीक है, तो 2t माइनस 2 3 जा 6. ठीक है, ये हो जाएगा. नेक्स्ट इज व्हाट आई डू, आई
move this 3t to the left hand side, it will become plus 3, and minus 6 move from left hand side to the right, it will become 10. Okay, t equals to 10 divided by 5 equals to 2. ठीक है, now we will do the verification by putting it into the equation. 2 minus 3, 3 to the 6. Okay, 4 minus 6 divided by 4, minus 1 upon 2, 4 minus 6 divided by 4. 4 minus 6 is minus 2 because 6 is a bigger number, और बिगर नंबर की साइन आ जाएगी माइनस. ठीक है, तो माइनस 2 अपॉन 4, अगेन ये 6 बड़ा नंबर था, इस वजह से माइनस साइन आ गई. ठीक, और माइनस 2, अब 2 1s are 2 and 2 2s are 4, so this will give you minus 1 upon 2. माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, माइनस 1 अपॉन 2 है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, मतलब प्रूव हो रहा है. तो टी हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारा 2 हो जाएगा. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. 24 में सिंपली आपने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है. 2x minus 2 3 is 6, and this will give you I think it is a repeated question. So hopefully कि आपको मेरे ये questions जो हैं वो जो जिनमें मसला हो रहा था, आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, आई थिंक कि आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सॉर्ट आउट हो गई होंगी. काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी. ठीक है, सही है, आप एक ही मेथड को फॉलो करें. ठीक है, डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई ना करें. सम पीपल आर टेकिंग LCM हेयर, सो व्हेन यू आर टेकिंग LCM, तो LCM लेते हुए जो है वो आपको नीचे से कोई कैंसिलेशन नहीं करनी होती. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके नीचे 1 है. ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे 1 है. ठीक, व्हेन यू आर टेकिंग LCM, दिस विल गिव यू 2 हेयर and v minus 6 equal to 2 5 are 10, 10 plus v divided by 2. अगर यहाँ 2 नहीं होता बल्कि 4 होता, अगर 4 होता तो यहाँ पे 4 आता. ओके, एंड 4 5 are 20 आता है यहाँ पर. ठीक है, तो ये 2 और 4 जो हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किसी बिगर LCM से, दैट इज 4. ठीक है, 4 से ही आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 बचेगा, और ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो अक्सर आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट इट कि यहाँ पे अगर सेम नंबर्स ना हो तो डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं होगी. ठीक है, बी केयरफुल अबाउट इट. एनी अदर क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क देन यू कैन आस्क मी इन अ ग्रुप. सो that is for today. Thank you so much. I am Shazin Rizwan here. You can contact me if you want to ask any question. Take care. Allah Hafiz.